Hello dear students, in the today's video we discuss about the reverse osmosis and importance of reverse osmosis in the day-to-day life. Now, first we need to discuss what is the term reverse osmosis means. Reverse osmosis means opposite to osmosis process. Opposite to osmosis. Now, opposite to osmosis means osmosis process. It means here in this osmosis process, flow of solvent from high concentration, yes, opposite हो गया ना, high concentration to low concentration via semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. The countries like Saudi Arabia, Dubai, or many of the Middle East countries, they does not have potable drinking water, or the amount of drinking water is very less. These are the coastal areas and which get surrounded by the sea waters. Now we know that sea water cannot be used in a drinking purpose. Now if you study or understand natural process of osmosis, then we know that in any osmosis process, as we studied during the last lecture in osmosis, in osmosis process, beaker is divided into two parts, A and B. A part is filled up with the 100 ml of pure water. Whereas on B part we place NaCl solution, saline seawater. Now seawater consists of near around 2% weight by volume NaCl solution. Such solution, normally seawater, is also called as saline water, and reverse osmosis is used for the desalination process, means removal of salt from water के लिए यूज होता है. Clear? Reverse osmosis process. Our in many number of homes in India we are utilizes the RO water. That RO water means reverse osmosis. Now in the sea water they consist around 2% weight by volume NaCl solution, and we know that NaCl is a non-volatile solute. Due to that, the vapor pressure of A component and B component, जैसा हमने आगे पढ़ा था कि इसका नियर अराउंड 100 mmHg होगा. Here more number of vapors are produces, here less number of vapor are produces. The vapor pressure of solution here it is somewhere around 90 mmHg, whereas vapor pressure of this is 100 mmHg. If such thing is happening, then मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू द ऑस्मोसिस, यहाँ पे प्रेशर हाई है तो इधर से इधर होगा, तो ए टू बी की डायरेक्शन में होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिकॉज एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम component A has a vapor pressure of 100 mmHg, whereas this one has a 90 mmHg. So natural process is take place and it's flow the solvent from direction A to direction B. A to B की डायरेक्शन में होगा तो ये 100 माइनस एक्स होगा और ये 90 प्लस एक्स. एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा एंड 95 100 में से 5 माइनस गए तो, और इस बार 95, दोनों के 99 95 95 होने से ये नॉर्मली ऑस्मोसिस प्रोसेस होता था. अब साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, वी नो डैट
If we increase the pressure on a component B, कितना इंक्रीज करना था, पाई वैल्यू 90 था प्लस 10 इंक्रीज करते, यानी इस पिस्टन को हमें क्या ले जाना था, थोड़ा नीचे की तरफ। जैसे ही पिस्टन को नीचे की तरफ आप प्रेस करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड इफ ड्यू टू दैट, अगर हम वापस कंडीशन को इनिशियल कंडीशन पे ले गए, 100 mmHg था और इसका 90 mmHg वेपर प्रेशर था, प्लस 10 mmHg का हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दोनों की तरफ प्रेशर कितना हो गया, इसका भी 100 है और इसका भी 100 है। बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, नाउ नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में सॉल्वेंट फ्लो करेगा नहीं। सॉल्वेंट कैन नॉट बी फ्लो इन एनी डायरेक्शन। बट अब साइंटिस्ट थोड़े और ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। किसी एक ने कहा, वी नो डैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशन। अब जो सऊदी कंट्रीज है, जो कोस्टल एरिया में कंट्रीज है, जिसके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि लाओ ना, चलो ना, जो प्रेशर हमने अप्लाई किया था 10 प्लस, उसकी जगह पे अगर हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो 90 में सिर्फ 10 बार का ही प्रेशर अप्लाई करते तो क्या हो जाता, ऑस्मोसिस प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टॉप हो जाता। सही है, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता कि नहीं। अब उन्होंने ऑस्मोसिस स्टॉप करने की जगह पे एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया, हायर प्रेशर देन कंपोनेंट ए। अब हायर प्रेशर देन कंपोनेंट ए अप्लाई करने की वजह से ए वाली साइड पे तो 100 mmHg था, यहाँ पे 90 mmHg था बी वाली साइड पे, बट उस पर एडिशनल उन्होंने 90 पे प्लस 10 करते तो क्या होता, ऑस्मोटिक प्रेशर स्टॉप हो जाता। लेकिन ऊपर से उन्होंने एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया 20 mmHg। अब कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 100 रह गया और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 110। तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, 110 वाला। अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा। और ये जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर था, उस नॉन ड्रिंकिंग वाटर को किस में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होगा, it will be helpful to convert it into drinking water, और ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब आपने सी वाटर का कन्वर्जन किस में कर दिया, ड्रिंकिंग वाटर में। नाउ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। इसीलिए किसी के भी घर पे आरओ वाटर है तो देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स, एक ड्रिंकिंग वाटर का पाइप्स रहता है और एक पाइप इस तरीके से निकलता है वेस्ट वाटर के लिए, दैट इज़ फॉर वेस्ट वाटर। नाउ नॉर्मली फॉर सच काइंड ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक इज नाउ इट इज वाइडली यूज फॉर ए हाउस होल्ड मेथड्स फॉर ए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और इसीलिए आपके घर पे कहीं के किसी के भी घर पे अगर आरओ सिस्टम लगा है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देयर आर 2 पाइप्स रनिंग आउट ऑफ द आरओ सिस्टम, वन इज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड वन इज़ फॉर वेस्ट वाटर। क्लियर, इसलिए इस तरीके से होता है। नेक्स्ट कि जब कभी भी हम आरओ सिस्टम की बात करते हैं तो कौन से टाइप का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको मालूम है कि मेम्ब्रेन थोड़े थोड़े समय पे चेंज करना पड़ता है। नाउ हियर cellulose acetate is widely used as a semi-permeable membrane, and this RO process is widely used, reverse osmosis process is widely used for a purification of water or desalination of sea water. This is about reverse osmosis. Hope you guys enjoyed the lecture. Please do subscribe the channel, share it and like the video. Thank you for watching and keep learning. Stay safe, enjoy yourself.